Day after violence was witnessed in Kolhapur, the police have arrested 36 people for rioting and damaging public property. Times Now, in fact, spoke to the police over the current situation on ground and the investigations that are taking place. The police so far have not ruled out the conspiracy angle. The accused also involves a few minors, and the police are now trying to ascertain if they were being used as pawns. They're also, in fact, trying to ascertain if Kolhapur violence has any links with the Ahmednagar violence, which took place 3 days ago. Listen in. We are investigating that matters. Mobiles have been seized of such boys, and we are taking the mirror image and analyzing the mobile data. 6 जून की तारीख क्यों चुनी गई? पहला पोस्ट हमने देखा 5 जून को शाम को 7 बजे होता है, दूसरा एक पोस्ट ठीक रात को 12:11 पे होता है। 6 जून ये इसलिए भी तारीख इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक मनाया जाने वाला था। तो क्या इस नजरिए से भी आपकी जांच आगे बढ़ेगी, जांच करने के लिए कि कहीं इसका कोई संबंध या लिंक है या नहीं? We are investigating the offence and the incidents from all the angles, and we will take this offence and investigation to a logical conclusion. ये बताया जाएगा कि ये कोई एक टूल किट वाली साजिश तो नहीं, पहले से ही इन्होंने डेट था इसीलिए वीडियो एडिट करके रखा था, बना के रखा था और एंड टाइम पर आने के बाद उन्होंने पोस्ट किया। तो कहीं मंशा जो है उनकी अशांति फैलाने की तो नहीं थी? इस एंगल को आप किस तरह से? We are investigating that thing also, कि when that video was created, when it was shared actually, and why it was posted on that particular day only. Now, there's a clear divide within the Mahavikas Aghadi that continues to raise some serious questions with the ruling government in the state of Maharashtra. And amid the investigations, this war of words is only escalating. But Sanjay Raut, interestingly, has come out to give a clean chit to the people of Kolhapur. He's claimed that they were not involved in the clash. Also claimed that it is the outsiders who tried to disturb peace deliberately. He was pointing fingers at the Shinde Sarkar. In fact, also asked if they need Aurangzeb to win the elections. कोल्हापुर की जनता इस दंगल में शामिल नहीं है। मेरी जानकारी कोल्हापुर के बाहर से लोग लाए गए थे कि बार बार इस राज्य में क्यों हो रहा है आपकी सरकार आने के बाद? आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो क्या आपका हिंदुत्व इतना कमजोर है कि किसी शहर में किसी का फोटो लोगों ने कैरेक्टर में उठा दिया तो आपका हिंदुत्व खतरे में आ गया? 400 साल के बाद भी आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब लगता है, इसलिए कि आपको कर्नाटक में बजरंगबली ने कोई मदद नहीं की, इसलिए आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए। In fact, it was just yesterday that the Mahavikas Aghadi called it a political gimmick by the state government and also alleged BJP's hand behind the same, saying that riots just simply don't happen over a social media post. While Sharad Pawar, on the other hand, said that religious color was being given to some small issues in Maharashtra. He, in fact, in as many words, called the resurfacing of Aurangzeb posters and now these protests and clashes that took place in Kolhapur a non-issue. समझो किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए दो में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इशू है? औरंगजेब एक अलग मसला है और टीपू सुल्तान एक अलग मसला है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ी है, ये इतिहास में दर्ज है, कोई झूठ नहीं है। भाजपा जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों का अपमान करती है वो गलत है। मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री का एक इंटेलिजेंस सोर्स होता है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है ना। इनका इंटेलिजेंस क्या किया जा रहा है? कितनी चीजें, मैं आपको 10 चीजें बता सकती हूँ विच द इंटेलिजेंस हैड वार्न्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द होम मिनिस्ट्री हैज डन नथिंग। सो इट्स अ फेलियर ऑफ द मिनिस्ट्री। और भाजपा जो है वो दंगे फैलाना चाहता है। इस तरह से किसी व्हाट्सएप पे और इससे दंगे नहीं होते। कोई औरंगजेब का फोटो लिया और इस तरह से दंगे नहीं हो सकते। ये जो बहुत गलत चल रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि फिर से हम लोग हिंदू मुस्लिम दंगे करें और सत्ता में आए, लेकिन इसका उनको बहुत ज़बरदस्त कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी। Well, the blame game has begun truly, but the Shinde BJP-led coalition, the BJP-led government is now hitting out at Team Uddhav Thackeray. It's saying that if someone tries to portray the traitors of the country as heroes, then it will not be tolerated. लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है आणि कायदा हातात घेणाऱ्याला पाठीशी घातलं जाणार नाही, याच्यावर कारवाई केली जाईल, ही आम्ही ठिकाणी सांगतो। जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण
एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले। 32 महीने की जो सरकार थी उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को काफी समर्थन दिया गया। अब उसके ऊपर कंट्रोल लाया गया है। जो हिंदुस्तान के द्रोही थे उनको हीरो बनाने का प्रयास करेंगे तो सरकार उसको चलान नहीं, ये नई कार्रवाई होगी।